आई जस्ट वॉन्ट टू से हर कि अगर उनको जंजीस के बारे में पता होता तो वो कभी कटर में। आपने कुछ नहीं किया, आप इतना सच के खड़े रहते, आपने कुछ भी नहीं किया. You never said anything. I mean, you are part of BJP only. You could have said something. क्लियरली उसके वर्ड से ये समझ में आ रहा है कि उसने बात ही नहीं करी है लोगों से, वो सिर्फ अपने सेलिब्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही है। ये स्टेटमेंट कंगना रनौत की तरफ से आ रहा है जिन्होंने क्वीन जैसी मूवी करी थी, तो दैट इज टोटली बेसलेस. हाउ कैन शी जज कि हमारा जनरेशन गटर जनरेशन है? हर एक जनरेशन में ऐसे गटर भी लोग रहते हैं और अच्छे भी होते हैं, ऑफ कोर्स. अदरवाइज देश आगे कैसे जाएगा? वो खुद एक औरत होकर वैसे कैसे बोल सकते मुझे समझ नहीं आता है। कैसे वो बोल सकते कि हमें अगली हम लोग वी डोंट लाइक, हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता। कंगना रनौत ने जेन जी को गटर जनरेशन कह दिया है और ये विवाद गहराता चला जा रहा है। सीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया है, तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में आखिर किसने क्या कहा। कंगना ने बोला है कि सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में हमारा ये जनरेशन गटर जनरेशन है, क्या कहोगे? Yeah, so I feel that is a very harsh statement, considering कि अभी हमारा protest हुआ है. Right now, us as a generation, Gen Z has made such a big revolution because I don't think anybody before us has done this. इतना प्रोटेस्ट करके इतनी लाठियां चार्ज हुई है हम लोगों पे. We actually have not gone to the protest, but I've seen everything, read a lot, talked to people, and I just feel like that is a very bad thing to say, considering कि आपने एज अ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट श्योर ऑफ हर पोजीशन, बट आपने कुछ नहीं किया, आप इतना सच के खड़े रहते, आपने कुछ भी नहीं किया. यू नेवर सेड एनीथिंग. आई मीन, यू आर पार्ट ऑफ बीजेपी ओनली. यू कुड हैव सेड समथिंग. और एक और बात वो महिलाओं के लिए कह रही है, women of this country have nothing to give to the society and they are westernized. If we are westernized, हिंदी में बोल सकते हो. नहीं, मतलब I mean, westernized का क्या मतलब है? If we are wearing jeans and pants, we are westernized. We as a country are very traditional. I mean, हमें जो सिखाया जाता है, हम जो करते हैं, we are very traditional people. Just wearing jeans does not make us westernized. और जो contribute नहीं कर सकते, even we can't be homemakers, you say. Being homemaker does not make you bad or good. I mean, my mother is a homemaker. I'm very grateful. She takes care of me, but that does not make her better than a person who's a working wife. I mean, that is not, because a mother is a mother, right? I mean, and even anybody, like they are people, they are working very hard. You can't measure contribution on basis of who's paying you something or who's doing that work for you. It's done out of love and you should be grateful for it. Oh my god. Okay. Okay, the main thing I feel that पहला सवाल था कि गटर जनरेशन पे क्या कहोगे? पहली बात तो किसी भी सेलिब्रिटी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज देन द you lose support so significantly and so quickly. And secondly, अगर आप ऐसे बोल रहे हो, clearly you have not seen people of the generation, you are holding yourself to a very idealized platform, and तुमने देखा भी नहीं है कि लोग बाहर कैसे behave कर रहे हैं, what kind of differences they are making. You're just saying this क्योंकि तुम दूर से observe कर रहे हो, and even you yourself have not as she said, you've not actually done a lot to contribute to society वैसे करके भी. तो from your perspective, I think you should be grateful to whoever makes even a little bit of change in society, because even little steps go a long way. Okay, ये एक और सवाल था कि women के बारे में वो बोल रही है कि हमारे पास कुछ contribute करने के लिए नहीं है, society में we are westernized. So, okay, first of all, being westernized does not mean that it's a bad thing. Even men are westernized, and even that's how our country is also developing. Okay, that is not. बताओ ना थोड़ा. इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम अपने ट्रेडिशंस भूल गए हैं, ठीक है. हमें बहुत कुछ याद है, हमें बहुत कुछ याद है कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए क्या करा है, हमारे ट्रेडिशंस क्या आते हैं, हमारे घर पे भी वही सिखाए जाते हैं, एंड वी विल इवन फर्दर ऑन टीच देम टू आवर चिल्ड्रन द गुड थिंग्स, नॉट द वेरी ऑब्सोलीट थिंग्स. तो उसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज हम थोड़े से वेस्टर्नाइज हो गए, थोड़े साड़ी नहीं पहनते, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंडियंस नहीं है एंड हमारा माइंड सेट डिफरेंट है. ओके, क्लियरली उसके वर्ड से ये समझ में आ रहा है कि उसने बात ही नहीं करी है लोगों से, वो सिर्फ अपने सेलिब्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही है. आपका नाम क्या है? फलक. फलक. कहाँ से हो फलक? लक्ष्मी नगर. ओके फलक, कंगना ने बोला है कि सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में जनरेशन ये वाले गटर जनरेशन है, क्या कहना चाहोगी? जैसे कहा, जैसे लोग वैसी सोच, और वैसे भी जैसे बीजेपी की सपोर्टर हैं वो, तो ऑब्वियसली वो यही कहेंगी. और जनपद में भी अब इतना कुछ हुआ, जब भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी अपनी, और उल्टा वुमेन्स के बारे में भी एक कहा कि गटर है ये. विमेन के बारे में वो कह रही है कि वी हैव नथिंग टू
women of this generation are westernized women. शी इज ऑल्सो अ इंडियन वुमेन, शी शुड सपोर्ट अस, बट जैसे कि वो सपोर्ट ही नहीं कर रही हैं और बीजेपी की उसमें है, तो वही हम कहेंगे कि जैसे सरकार अभी चला रही है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनके जो भी वो कर रहे हैं गलत चीज़ है उनकी उसमें सपोर्ट कर रही हैं, उन्हें स्टैंड लेना चाहिए बट वो नहीं ले रही हैं। अकाउंटेबिलिटी जैसा अभी सब कुछ हुआ वो देश में नहीं रही है और वही वो सपोर्ट कर रही हैं उन्हें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साखी है। कहाँ से हो आप? मैं वैसे असम से हूँ। अच्छा, तो आप सीजेपी का पार्ट थी? मैं प्रोटेस्ट का पार्ट थी, मतलब या ओके, सो यू वर देयर इन द प्रोटेस्ट। या कंगना रनौत ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि जेन ज़ी इज अ गटर जनरेशन। यस, दैट इज़ वेरी वियर्ड थिंग टू से। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है हमारी जनरेशन ने, जेन जी, हमने अपनी जनरेशन में जितनी डांटें सुनी कि ये जनरेशन से फ़ोन पे रहती है, कुछ नहीं करती है, आलसी रहती है, उस पर हमने प्रोटेस्ट करके आवाज़ उठा के, एक्चुअली सही चीज़ों पे, सही मुद्दों पे आवाज़ उठा के एक इतना बड़ा जीत कह सकते हैं हम, या एक चेंज, हमने चेंज लेके आई हैं। और उस पर कंगना रनौत का अगर ये स्टेटमेंट आता है तो दैट इज़ इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। और एक और बात कह रही है वो औरतों के बारे में, दैट वुमेन हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी और वेस्टर्नाइज्ड वुमेन है हम लोग। ये स्टेटमेंट कंगना रनौत की तरफ से आ रहा है जिन्होंने क्वीन जैसी मूवी करी थी, तो दैट इज टोटली बेसलेस। मतलब यू आर ऑल्सो एन जर्नलिस्ट, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। आई डू थिएटर, मैं भी जर्नलिज्म की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, सो आई डोंट थिंक सो, इट डड नॉट मेक एनी सेंस। शी आल्सो सेड कि हम होम मेकर्स नहीं हो सकते। एकदम सेंस नहीं बनाता। मेरी मम्मी हाउसवाइफ भी है, मेरी मम्मी टीचर भी है, मेरी मम्मी स्कूल से पूरा स्कूल से पढ़ाती हैं, तो आई डोंट थिंक सो, डजंट मेक सेंस एट ऑल। ये चीज़ हमें और पीछे कर रही है, जिसके लिए हम लड़ के इतने टाइम से आए हैं, हमने इतनी आवाज़ें उठाई हैं, हम इस चीज़ को चेंज भी लाना चाहते हैं। और कंगना रनौत MP भी हैं और वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी है, और उनका ये स्टेटमेंट आना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। क्या नाम है आपका? आई एम श्रेया, आप कहाँ से हैं आप? बंगाल से हूँ। कंगना कह रही है कि हमारा जो जनरेशन है वो गटर जनरेशन है, आप क्या कहेंगी? हाउ कैन शी जज कि हमारा जनरेशन गटर जनरेशन है? हर एक जनरेशन में ऐसे गटर भी लोग रहते हैं और अच्छे भी होते हैं, ऑफ कोर्स, अदरवाइज देश आगे कैसे जाएगा? Okay. और कंगना ये भी कह रही है औरतों के बारे में कि women are of this country have nothing to offer to the society and you know I mean they're westernized women. Okay, she is also a woman. Okay, so how can she talk about this? आप कुछ कहना चाहती है कंगना को जो ऐसे कह रही है, स्टेटमेंट्स दे रही है? No. I don't want to say anything. This type of woman who mindless. ओके, आप अपना नाम बताओ। Khushi. कहाँ से हो खुशी? Well, basically, I'm from Karnataka, but I've been living in Russia since 4 years now. Yeah, तो आप कर्नाटका से हैं, हिंदी हाँ में जी। बात नहीं कर पाएंगी? I'm very good with Hindi. कोई बात नहीं, I can speak Hindi. हिंदी बोल सकती हाँ है? जी, हाँ जी. तो कंगना रनौत कह रही है कि जेन ज़ी वेस्टर्नाइज्ड विमेन है और हमारे पास कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है सोसाइटी को। Westernized है तो क्या हुआ? It's fine. Why not? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि we are not contributing anything for the society even after being westernized. That's not a problem. हर किसी का अपना अपना personal choice है. They have their choices. To rather be westernized, be whatever they want. Women are independent to do what they want. They're free, just free. वो ये कह रही हैं कि जेन ज़ी इज अ लॉट ऑफ अगलीनेस एट वन प्लेस। ugliness वैसे ज्यादा बॉलीवुड में है. Never mind. आखिरी है कि जो कह रही है बहुत कुछ कह रही है, लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, शी इज कॉलिंग CJP प्रोटेस्टर्स गटर जनरेशन। Oh my goodness. That's a filthy statement in the first place, actually. That's a filthy statement. You cannot say that. So, I don't have any answer for this. गटर जनरेशन से क्या इन्फर करती हैं आप? अब क्या बोलेंगी इस पर? What do you have to say back to her? She has a filthy mind, not the gutter, not the Gen Z's have a filthy mind. She herself has a filthy statement and a filthy mindset. We cannot help her. Sorry. Please. Okay. And what do you think about CJP? CJP के बारे में क्या सोचते हो जो प्रोटेस्ट हुआ हमारे देश में? Well, I do support CJP myself, and जो भी हुआ, all the resignation and everything, that was good. And I really, but I live abroad, but I've been seeing this from the beginning, and I think ये होना चाहिए था. This was needed.
अभी फिलहाल जो भी चल रहा है, इट वाज रियली नेसेसरी कि कोई तो स्टेप ले. तो आई डू सपोर्ट सीजेपी. आई डू सपोर्ट. दैट्स इट. दैट्स ऑल. जी मैं पहले सवाल पूछती हूँ हम्म। आपको। कंगना ने बोला है सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में कि ये एक गटर जेनरेशन है, तो आप क्या कहेंगी गटर जेनरेशन पर? आई जस्ट वॉन्ट टू से हर कि अगर उनको जनजीज के बारे में पता होता तो वो कभी गटर नहीं. दैट्स इट. और Very एक और बात जो वो कह रही हैं कि women are of this generation very have nothing to contribute to the society, तो आप क्या कहेंगे उन्हें? अगर हम लोगों को सोसाइटी के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता तो उन्होंने जो भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट देखा उसमें जो महिलाओं का योगदान देखा तो वो अगर ऐसा नहीं होता, कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो फिर ये उनको कहने का मौका ही नहीं मिलता. आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिजाई है. कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र. तो Yeah. कंगना रनौत ने स्टेटमेंट दिया है सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर। आई थिंक शी इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी. तो मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी जानी पहचानी एक पर्सनैलिटी है. तो उन्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो क्या बोल रही है और थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वो पूरे यूथ को, नॉट ओनली यूथ पर सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है. तो आप किसी जनरेशन को, एक पूरी जनरेशन को या कम्युनिटी को गटर बोल रही है तो आई डोंट थिंक दैट इज एथिकल. ऑल्सो इट्स वेरी रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स बेसिकली. एक आखिरी सवाल है कि जी. उन्होंने महिलाओं को लेकर ये बोला है कि women have nothing to contribute to the society ओके. of this generation. Women are living off their parents, and women are she said ugly, and what all she said, we cannot be homemakers, या so and we are westernized. या तो आप इस पे क्या कहेंगे कि westernized है हमारी generation? I think she works in Bollywood. She has an idea of what she is speaking. When you call someone that that we are westernized, you have done so many movies, you have done so many things. Is that not so westernized then? If that is what you're saying, तो आप उन्हें क्या कहेंगी? हम हमारी तरफ से think आपको- before you speak. आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो. आपका नाम क्या है? So my name is Mansa. We are originally from Bangalore. अभी internship के we are here. So And my name is Yashvi, and we are studying law, so that's the reason we are in Delhi right now. ओके, तो पहले मैं आपसे पूछती हूँ. कंगना ने बोला है जेन जी इज अ गटर जनरेशन. कंगना रनौत द एमपी बोले जेन जी इज अ गटर जनरेशन. तो व्हाट यू हैव टू से, आपको क्या कहना है? हिंदी में प्लीज थोड़ा सा प्लीज बोल सकते हैं. it's not like I don't. The thing is, Gen Z abhi whatever we do, it's for a logical reasoning. And abhi if I take the example of the protest jo abhi hua tha, I personally believe, not to offend anyone, I personally believe ki whatever we put forward as our queries is genuine, but what it turned out was not in. Lot more extreme than it should have been. And personally, I think we are a generation where we speak our mind, not just keep it to ourselves. We try to let our politicians know what we want, because at the end of the day, politicians are supposed to hear the public and not just do what they feel like. And that's the reason we wanted some accountability. Yes, it turned out a lot more vast and more, बहुत ज्यादा फैल गया था और बहुत ज्यादा शोर मच गया था. उतना हाँ, वेरी इम्पैक्टफुल हो गया था. विच समटाइम्स पीपल थिंक जेनजी में बस थोड़े से स्लैंग होते हैं, थोड़े से ये होते हैं, उनमें कुछ इतना है नहीं. जब हम लोग को बात करना होता है हम लोग कर सकते हैं. अच्छा, उन्होंने बोला एक और चीज बोला है कि जो जेनजी विमेन है वो काफी अगली है और शी हैज नेवर सीन सो मच अगलीनेस एट वन प्लेस अबाउट जेनजी, एंड द विमेन हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. I think there's a better judgment जो अभी release हुआ है, which says that women are the one who bring the economy out. I think उनको थोड़ा सा न्यूज पढ़ना चाहिए. Yeah. To be very honest, That's what we and would she like being to a say. woman, she being in the parliament, being a member of the parliament, वो खुद एक औरत होकर वैसे कैसे बोल सकते मुझे समझ नहीं आता. एंड कैसे वो बोल सकते कि हमें अगली, हम लोग वी डोंट लाइक, हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता. वी आर अ पर्सन कि हम लोग जो देख रहे हैं जो हम लोग के लिए, वी कीप टू आवर सेल्फ. हम लोग इतना ओपिनियन जजमेंटल नहीं है. वैसे बोलते नहीं है कि जो ब्यूटी है वो अंदर से आती है ना कि फेस से. सो इफ यू गो बाय दैट, आई थिंक सारे वुमेन आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे.
अलग करके बोल नहीं सकते कि कौन वो वैसी है वो वैसी है। तो अब उनकी सोच है, हमारी तो नहीं है वैसी ना, हम कभी बोलते कोई को वैसे।